Welcome students and welcome to the course of machine design. Today we are going to see a very important topic, that is design against fluctuating or variable loading. Okay, some portion remain in the unit number 1, that is design against static loading, that I will complete later on, like wise I try to complete it. But today's topic is design of a machine for finite life. Okay, and then afterward we will discuss design of a machine component for infinite life. When I am saying infinite life or finite life, means we are studying fluctuating or variable loading condition. Okay, before going to start, I wish to discuss some basic concept regarding variable and fluctuating load. Okay. In the screen you may see the topic cyclic stresses. You know what is stress? Okay, now you also know from the some subject, that is what is cyclic stress, but I'm not going on this matter that you know or not, but I wish to add on some more concept in your mind, that is what is the difference between completely reverse stress, which is also called as cyclic stress, and fluctuating stress. Difference between completely reverse stress और fluctuating stress and also repeated stress, इन तीनों में डिफरेंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. यू नो द कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग, लेकिन आप ये नहीं जानते किसको क्या कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक स्ट्रेस और व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस? यू नो द डिफिनेशन पहले से आप लोगों को पता है, लेकिन किस डिफिनेशन किसका स्टेटमेंट कौन सा है वो आप लोग नहीं जानते हैं, आई होप. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंप्लीटली रिवर्स और साइक्लिक स्ट्रेस. ओके, so the stress which vary from one value of compressive to the same value of tensile or vice versa are known as completely reversed or cyclic stress. Means when you get to know that a machine component is subjected to 150 mega Newton per millimeter or meter square, sorry I am adding it here, meter square, with completely reverse or cyclic stress, or cyclic stress. Okay, means the value vary from plus 150. You already know the plus sign indicated the machine component is in tension. And negative sign indicate the machine component is subjected to compressive force. Okay, या compressive load या compressive stress, whatever you want to say.
Okay, means when you come upon or you get to know that your machine company subject to say take another example 250 mega newton per meter square with completely reverse or cyclic stress. Completely reverse or cyclic stress means your machine component subject to plus 200 mega newton per meter square to minus 200 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव में जा रही है टेंशन में और एक बार कंप्रेशन में, फिर नेक्स्ट टाइम टेंशन में, फिर कंप्रेशन, फिर टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ये रिपीटेड मतलब रिपीटेडली यही जो एक साइन वेव टाइप का ग्राफ आप लोग देखेंगे। गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड और कंप्रेशन एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है इन तीनों के डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअली आप लोग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्लीटली रिवर्स और cyclic stress. Now come to the next concept, that is fluctuating stress. What is fluctuating stress? Okay, I am reading the statement as it is. The stress which vary from a minimum value to a maximum value of a same nature, mark my statement, vary from a minimum value to a maximum value of a same nature। ठीक है, एक ही नेचर का होना चाहिए वो, इधर अगर टेंसाइल होगा टेंसाइल, कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव। से फॉर एग्जांपल प्लस 10 न्यूटन लोडिंग है, ठीक है, या स्ट्रेस में अगर करंट ले रहे हैं तो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और वेरी हो रहा है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 50 MPa। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरी हो रहा है। मीन्स यू सी दैट द वैल्यू वेरी फ्रॉम 10 positive 10 to the positive 50, means the value is in tension only. It does not mean कि हमेशा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में टेंशन ही होगा, कंप्रेसिव फोर्स भी आ सकता है। जैसे कि इसी को साइन चेंज कर दीजिए, द वैल्यू मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ -10 MPa मेगा पास्कल टू -50 मेगा पास्कल, -50 मेगा पास्कल, ये चेंज कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? यानी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में जो वैल्यू होंगी वो मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करेगी या मैक्सिमम टू मिनिमम वेरी करेंगी, बट द नेचर ऑफ द स्ट्रेस इज सेम। ठीक है, यानी अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज रिपीटेड स्ट्रेस? ठीक है, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट एज इट इज। The stress which vary from 0 to maximum means once the value is 0 then it goes to maximum value, then 0, then again maximum value, then 0, then again maximum value। ये टेंशन में भी हो सकता है और कंप्रेशन में भी हो सकता है। ठीक है, यानी 0 to +50, then again 50 to 0, then again 0 to +50। ठीक है, सिमिलरली इन द कंप्रेशन ऑल्सो 0 to -40। ठीक है, देन -40 to 0, देन अगेन 0 to -40। ठीक है, ये क्या हो गया? रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, ये डिस्कस करने का मेरा मोटो एग्जाम में ये 1.5 से 2 नंबर में आता है। अगर आपका 70 का पेपर बनेगा 1.5 नंबर, नहीं तो 2 नंबर का। 50 का होगा तो आपका 1 नंबर बनेगा। ठीक है, 1 नंबर पेपर में। वैसे इस बार पेंडेमिक है तो पेंडेमिक कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, पेपर होते कि नहीं होते, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, और इस
पे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम, मेन एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों डिफिनेशन पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन तो बन जाएंगे आराम से, ठीक है। 20, ये देखिए 3 डिफिनेशन, तो इसी पे 20 क्वेश्चन एटलीस्ट। बाकी बनाने वाला और भी बना सकता है घुमा, बस स्टेटमेंट चेंज करना है, कॉन्सेप्ट के साथ खेलते रहेंगे बच्चों के साथ, ठीक है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो आई एम टेलिंग यू once again, that is completely reverse means the stress value vary from one value of compression to the another value of tensile, ठीक है। of the same वैल्यू सेम रहेगा। अगर हम लोग completely reverse बोलेंगे 100 मेगा पास्कल, ठीक है, तो 100 मेगा पास्कल पॉजिटिव में, देन 100 मेगा पास्कल निगेटिव में, यानी वन सा टेंसाइल देन वन सा कंप्रेसिव, ठीक है। देन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मीन्स द वैल्यू, स्ट्रेस वैल्यू वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर, यानी अगर कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव ही रहेगा, टेंसाइल होगा तो टेंसाइल में ही रहेगा, ठीक है। एंड देन स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नाउ व्हाट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने से पहले इन टॉपिक का पढ़ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ये बेसिक है इसको पहले ख़त्म करेंगे, फिर उस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अब ये क्या नया चीज़ है, अब बोलेंगे सर ये क्या नया चीज़ आ गया। देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट इज स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, जानते हैं, देश का बच्चा जानता है ये टॉपिक, जो भी मैकेनिक्स पढ़ा होगा वो जानता है कि स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इसी से खेल जाते हैं, ठीक है। तो आपको खेलना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगना है, क्योंकि सपोज यू आर होल्डिंग अ पेन, अभी आप लोग पेन पकड़े होंगे या कुछ भी पकड़े होंगे। नाउ अप्लाई पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव मीन्स अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगेगा तो बॉडी में स्ट्रेन भी होगा, स्ट्रेन आएगा, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग लगाएंगे द पेन और द मशीन कंपोनेंट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। जो अप्लाइंग फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ओके। अब देखिए, जैसे मूव करना स्टार्ट हो गया, यानी द अप्लाइड फोर्स जनरेट स्ट्रेन इन इट, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रहा है, जनरेट करेगा स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन डेवलप हुआ। अब स्ट्रेन जो हो रहा है बॉडी में या मसल कंपोनेंट में, उसको अपोज करने के लिए स्ट्रेस आएगा, ना कि जो अप्लाइड लोड है उसको अपोज करने के लिए आता है, ठीक है। अप्लाइड लोड को अपोज करने नहीं आता है, जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको अपोज करने के लिए जो बॉडी है वो अपने अंदर स्ट्रेस को डेवलप करती है, ठीक है। स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी मीन्स स्ट्रेन द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। नाउ एक सिंपल कोई बॉडी है, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा, यानी एक फोर्स लगाए हम, और वो बॉडी क्या है, होमोजीनियस है, यानी उसमें कहीं भी अगर हम कोई भी एक पार्ट उठाएंगे तो जो मेटल का पार्ट अलग पूरे मशीन कंपोनेंट में है वही मेटल वहाँ मिलेगा, ये जंक्शन हमारा, ठीक है। कहीं भी कोई इंटरनल क्रैकिंग या नोच या फिलेट या होल नहीं है, ये एज्यूम करते हैं। तो अगर हम लोग इक्वली फोर्स लगाएं दोनों साइड, सिग्मा मान लीजिए, सॉरी सिग्मा स्ट्रेस की वैल्यू है, इक्वली फोर्स पी या एफ कुछ लगाते हैं दोनों साइड इक्वल फोर्स, तो क्या होगा, इक्वल स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें मशीन कंपोनेंट में, क्या होगा, इक्वल स्ट्रेस डेवलप होगा मशीन कंपोनेंट में। ये कब, जब एक आइडियल बॉडी है हमारा, तब जब ये बॉडी आइडियल होगा तो हम लोग ये रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, यानी इक्वल स्ट्रेस डेवलप होगा अगेंस्ट द इक्वली अप्लाइड लोड इन द बोथ डायरेक्शन। नाउ कम टू द
figure that you are seeing, rectangular sheet, and in the middle you see a hole. यहाँ होल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब इस पे लोडिंग लग रहा है दोनों डायरेक्शन में, सेम लोडिंग। तो एज वी नो दैट जैसे लोड लगाएंगे स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस भी आएगा। अब देखिए नीचे वाला डायग्राम देखिए, नीचे इज द कट पोर्शन ऑफ द अपर पिक्चर, और नीचे जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो लोड की वैल्यू है, राइट हैंड साइड में वो स्ट्रेस की वैल्यू है जो डेवलप हो रहा है बॉडी में, ठीक है, गॉट इट। जो बॉडी में डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जितना जो कट पोर्शन है यानी कट करेंगे बीच से, तो हम लोग ये देखेंगे कि एक बाउल शेप या हाफ सर्किल बनेगा, नीचे बन रहा है, दिख रहा है। तो हाफ सर्किल के अपर पोर्शन में जो स्ट्रेस होगा, जितना स्ट्रेस होगा वही स्ट्रेस की वैल्यू हाफ सर्किल के लोअर पोर्शन में जनरली होगा, ठीक है, अनलेस अनटिल कोई और क्रैक ना हो। तो जो हाफ सर्किल के अपर पोर्शन में वही हाफ सर्किल नीचे पोर्शन में। लेकिन जैसे ही हम लोग सर्किल में इन कर रहे हैं तो देख रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, और फिर जब हम लोग मिडिल में आ रहे हैं सर्किल के तो स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है। देन फिर हम लोग लोअर डाउन आ रहे हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू फिर मिनिमम होती जा रही है। जैसे हम लोग सर्किल के बाहर आ गए तो स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो गई नीचे तक, और वैसे ही सिमिलरली वॉइस वर्सा ऊपर पोर्शन में भी हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये क्या हो रहा है, जहाँ भी क्रैकिंग होगा, होल होगा, नोच होगा, फिलेट टाइप का होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहीं से बॉडी फेल होने की संभावना है, ठीक है, बॉडी वहीं से फेल होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। कहीं भी इंटरनल क्रैकिंग वगैरह एनडीटी में आप लोग को पढ़े होंगे, थर्ड ईयर में भी एनडीटी है, फोर्थ में भी एनडीटी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इंटरनल क्रैकिंग वगैरह कितना सीवियर होता है, कैसे उसको टेस्टिंग करते हैं, वो अलग अलग मेथड है, ठीक है। अपर सरफेस के लिए कैसे चेक करते हैं, लोअर सरफेस के लिए कैसे चेक करते हैं, मिडिल में अगर होगा तो क्या करते हैं, ठीक है। तो इन सबों के लिए है। तो जैसे ही जहाँ इंटरनल क्रैकिंग होगी वहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब इस स्ट्रेस के वजह से ही बॉडी फील होगा, ठीक है। तो सोचिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन, छोटा टॉपिक, और कितना हम लोग इसके ना जानने की वजह से हम लोग अवेयर ना होते, जो अवेयरनेस होती है वो बहुत कम होती। एज ए इंजीनियर हम लोग को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ही लेके आप कंसिडर करके आप कोई बड़ा काम करेंगे, बड़ी चीज़ों या बड़ा डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन कंसिडर क्या करेंगे, हर बारीक से बारीक चीज़ों को, ठीक है ना। अब हम लोग समझ में आ चुका है, अब हम लोग स्टेटमेंट जाते हैं। मेरा यही तरीका है, पहले हम समझा देंगे आप लोग को, तो हम लोग को स्टेटमेंट समझने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे, वह एग्जाम ले देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू the irregularities. It can be defined as the localization of high stress due to irregularities present in the component and abrupt change of the cross section, ठीक है। या तो कोई इरेगुलरिटी में भी इंटरनल क्रैकिंग है, या कोई फ्लॉज है, या बॉडी में होमोजेनिटी नहीं है, इसके वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। बॉडी अगर होमोजीनियस है तो इक्वल स्ट्रेस मिलेगा, अगर नॉन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस कंपोनेंट हो तो इक्वल नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे मटेरियल साइंस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड। अगर आप इसमें रिसर्च करने जाएंगे तो यू आर नो नथिंग। जब हम लोग बीटेक का मटेरियल साइंस पढ़ेंगे और आगे अगर आप
जाते हैं एमटेक और पीएचडी करने मटेरियल साइंस में, तो आपको लगेगा बीटेक का मटेरियल साइंस तो कुछ नहीं है, रद्दी है। फिर भी वो बेसिक है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और बेसिक जैसे ही आप एमटेक या पीएचडी करने जाएंगे मटेरियल साइंस से, तो लगेगा बेसिक का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी अलग बेसिक है, बेसिक का भी बेसिक। ठीक है, तो बात की बात है। तो मटेरियल जब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अगर होगा, इरेगुलरिटी होगी। क्रैक होगा इंटरनल तो इरेगुलरिटी हो सकती है, होल होगा तो इरेगुलरिटी हो सकती है, नोच होगा तो इरेगुलरिटी हो सकती है, फिलेट होगा तो इरेगुलरिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से इरेगुलरिटी हो सकती है। कंपोनेंट एंड एब्रप्ट चेंज इन द क्रॉस सेक्शन। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले हैं। और डाटा बुक, एक बार हम एक वीडियो लेंगे जिसमें डाटा बुक में कैसे देखा जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है? के टी इज इक्वल टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ड्यूरिंग डिसलोकेशन, सॉरी नियर डिसलोकेशन, अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये एक सिंपल डिफरेंशन है। इसको हम लोग अगर फार्मूले फॉर्म में लिखे तो सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट, सॉरी के टी इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट। ठीक है, यानी वो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा और सिग्मा नॉट जो है नॉमिनल वैल्यू है। सिमिलरली फॉर द टाउ, ठीक है, टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉट, टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉट, के टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉट। ठीक है, यानी इसमें भी मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, जनरली हम लोगों से क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जाती है। जनरली क्वेश्चन में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम लोग से मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जाती है। वी कैन गेट नॉमिनल स्ट्रेस फ्रॉम फार्मूला। बगल में आप एक डब्बा देख रहे होंगे, बॉक्स, उसमें और नॉमिनल के लिए फार्मूला दिया हुआ है, उसका यूज़ करके लोग नॉमिनल निकाल सकते हैं। ठीक है, के टी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड द इरेगुलरिटीज़ हम लोग के टी की वैल्यू डाटा बुक से निकालेंगे। उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, स्पेशल क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग के टी की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए कैसे लेंगे, उस पर हम 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है उसमें, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में आप लोगों को दिख रहा है नॉमिनल स्ट्रेस कैसे निकाला जाए। इफ़ अ प्लेट सब्जेक्टेड टू अ होल हैविंग if plate having width W and thickness T and subjected to a hole having diameter D, ठीक है, उस पर एक होल है और उसका डायमीटर D है, तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू P अपॉन W माइनस डी इंटू थिकनेस। सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन W माइनस डी इंटू थिकनेस हो जाएगी। ये नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू है, वेयर P इज द लोड दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई और यू आर अप्लाइंग, W इज द width, D is the diameter of the hole and T is the thickness of the plate। ठीक है, सिमिलरली जहाँ पे कुछ नहीं है, अगर साफ की बात करें, ठीक है, तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू P अपॉन डी इंटू टी, सॉरी विथ, यहाँ पे ये विथ है W इंटू टी होगा यहाँ पे। ठीक है, विथ को D से भी डिनोट किया जा रहा है कहीं पे, तो सिंपल अगर प्लेट होगा, ठीक है, और प्लेट में क्या है? फिलेट है, प्लेट में एक साइड फिलेट दिया हुआ है, तो जहाँ पे फिलेट कम होगा, जैसे एक फिलेट है, हम लोग डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो फिलेट के राइट हैंड साइड में जो एरिया होगा, जो प्लेट होगा, वही हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन होगा। एरिया ऑफ कंसिडरेशन
वही होगा। तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन डी इंटू टी है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see the fatigue. What is fatigue is, I wish to discuss now, but due to shortage of time, I may discuss in the next class. But next class will be the डाटा बुक क्लास, ठीक है। डाटा बुक कैसे देखना है, आई होप आप लोग डाटा बुक खरीद लिए होंगे। यू मे बाय अ डाटा बुक ऑफ वी भंडारी और बाय डॉक्टर सारू सिंह और डाटा बुक ऑफ आर एस खुरमी इन द PDF format, and which you have to sign by HOD and stamp of your department or college. Then after you will able to use it in एग्ज़ाम में आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो डाटा बुक भी एक PDF फॉर्म में आर एस खुरमी का, वो भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम वही प्रेफर करते हैं, आर एस खुरमी का जो डाटा बुक है उसी से, ठीक है। बट आप कोई भी डाटा बुक लीजिए और उसकी सहायता से डाटा को देखना, कौन सा डाटा कहाँ पे है वो स्टार्ट करिए। नहीं तो चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग उसको कब पकड़ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम के आसपास, ठीक है। और आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल एक स्पेशल लेक्चर होगा, इसी पे एक स्पेशल वीडियो आएगा आप लोग के सामने 15 मिनट का। देन आफ्टर आई विल गोइंग टू teach you what is the fatigue or what is the curve that you seeing in your front means, ठीक है। वो कर्व का मतलब क्या है वो आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, in the case of any query, you may comment in a comment section, then I will try to answer it in comment section, and if not, then I will make a special video on it, okay। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपने घर में जो आसपास बच्चे हैं, अपने आपके घर में उनका ख्याल रखिए, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।